The last conversation, the second last conversation it was, I guess. Yes. The shoes conversation. One more time. Understand the flow. When there is a conversation, you always need to understand the relation between the two comments. Okay, let's see. They're great. They're nice, aren't they? They're Italian. The colour's amazing. Red, wow. 6. We have a new teacher. They're Italian. French. 5. Listen again. I love your shoes. They're great. They're nice, aren't they? They're Italian. The colour's amazing. Red, wow. 6. We have a new teacher. Her name's Nancy. Is she nice? No, she's awful. I hate her. Why? I don't understand her. She talks and talks and talks all the time. Tape script 4.11. 1. Do you know Alice has a new boyfriend? Really? Is he okay? He's lovely. Oh, what's his name? James. Good for Alice. 2. Ben has a new flat. Wow. Where is it? In the centre of town. Is it nice? Oh, yes. It's fantastic. The living room is fabulous. 3. What a horrible day. Yes, it is. Rain, rain, rain. It's terrible weather at the moment. Oh well, tomorrow's another day. 4. This is an excellent meal. Thank you. I'm pleased you like it. And the wine is wonderful. Where is it from? I think it's French. Yes, it is. French. 5. I love your shoes. They're great. They are great. They are great. Aditi beta, the great matlab? Only the great matlab beta? They are great. Your shoes are great. They're nice, aren't they? They are nice, aren't they? They're Italian. They are Italian. उसी का लाइन है जिसने कहा they are nice, aren't they? They are Italian. उसने आगे बात बताई. अच्छे लग रहे हैं ना? इटली का है. They are Italian. Colour's amazing. The color is amazing. The color R कैसे लिखा आपने अदिति? Red, wow. उसी का है. उसी का लाइन है. The color is amazing. Red, wow. सब लोग फिर से लिखेंगे A और B करके. सबको पता होना चाहिए लाइंस अलग अलग, right? Everybody will write again the audio script. और इस बार A और B करके लिखना है. और एक लाइंस पता होना चाहिए कि A ने इतनी बात कही, फिर B ने ये कहा. अगर मिक्सअप हो गया इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो बातचीत को. अब जब समझ नहीं रहे तो बातचीत करना तो पॉसिबल नहीं. 6. प्रैक्टिस भी कर सकते फिर इसकी. We have a new teacher.
We have a new teacher. The boy comes home and informs his father. We have a new teacher. Her name's Nancy. नीचे लाइन में क्यों लिखा है? आप बगल में लिखिए. Her name is Nancy. Is she nice? Then B says, is she nice? No, she's No, she's awful. awful. I hate her. I hate her. Why? Why? Why do you hate her? I don't understand her. I don't understand her. She talks and talks and talks all. I don't understand her के बाद फुल स्टॉप नहीं चाहिए. जब आप ऑडियो सुन के ऑडियो स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपका सेंस टेस्ट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस खत्म हुआ, नया सेंटेंस शुरू हुआ, क्योंकि सब बोलते समय फुल स्टॉप बोला नहीं जाता. फुल स्टॉप का एक सेंस होता है कि बात हो गई खत्म, राइट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. ऑडियो स्क्रिप्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए. the time. She talks and talks and talks all the time. So why doesn't the boy like her? Why doesn't the boy like this new teacher? Because she talks and talks and talks. And not only that, he doesn't understand her. He doesn't understand her. Perhaps she is a new language teacher. Maybe she is a English teacher or French teacher or, Sanskrit teacher. She talks and talks and talks all the time and he doesn't understand her. Like यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कौन सी सर बैठ के इंग्लिश में बोलते रहते हैं, कुछ समझ में आता नहीं, हमको कुछ पढ़ाते उड़ाते नहीं है, खाली बोलते रहते हैं बैठ के. तो वैसे ही वो लड़का है. He doesn't like that teacher because she talks and talks and talks all the time and he doesn't understand her. So do you think the teacher is bad? No, the only situation problem is the boy doesn't understand her. And he should tell her that I don't understand you, teacher, please. उसको बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलने की जगह के घर कह रहा है I don't like her, she is awful. तो ये कई हम स्टूडेंट्स के साथ होता है. हमारे टीचर्स हिंदी में बोलते हैं. Who is asking? Sir, awful means? Yesterday I taught you some adjectives, good and bad. So awful was for good or bad? If I say X is awful, so X is good or bad in my opinion? Bad. If I say mangoes are awful, it means I like mangoes or I don't like mangoes? Don't like mangoes. I don't like mangoes, so I will say mangoes are awful. But I love mangoes, so I will say mangoes are wonderful. Mangoes are fabulous. Mangoes are lovely. आप क्या बोलेंगे? Mangoes. चुप क्यों है? बोलिए ना. देखो ये तो खराब बात है. मैंगोज के बारे में आपको क्या बोलना है? Mangoes are great. Mangoes are lovely. Mangoes are wonderful. Mangoes are fabulous. तो ये सारे वर्ड से आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको मैंगोज पसंद है कि नहीं, आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं? तो गुड और बैड, जिस चीज को आपको गुड बोलना है इतने सारे ऑप्शंस है, बैड बोलना है इतने सारे ऑप्शंस है. एनी प्रॉब्लम्स? So your homework will be to write the audio script one more time. आपको फिर से एक बार लिखना audio script. Okay? Now let's go to the main book. Open your main book, everyone. क्यों लिखना है फिर से audio script बताइए? Why do you need to write the audio script one more time? Why do you need to pick it up and be careful? Listen carefully and write A and B. What has broken? Also, What has broken? The phone or the glass? Yeah, you need to write one more time the audio script. सारे लोग audio script फिर से लिखेंगे. क्यों? क्योंकि लिखते समय आपके बहुत से समझ को चैलेंज किया जाएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं. मैंने अभी समझाया, प्ले कर दिया सारा, एक एक लाइन बताया, अब जाके लिखेंगे. You will feel more confident, right? और बेटा, I have not added you to the group now. अच्छा, मैं अभी करूंगा. I will add you right now, okay? आपको विमेन क्रिकेट देखने में मजा एकदम नहीं आता है, तो आप क्या बोलेंगे? विमेन क्रिकेट इज
आप बोर हो जाते, एकदम बोर हो जाते, एकदम बेकार लगता है, टाइम वेस्ट लगता है आपको, क्या बोलोगे आप? Horrible. Yes, women cricket is horrible. It's awful. It's a waste of time. Okay. Is there an actor you don't like? Is there an actor you don't like? देखो, जब भी मैं कुछ पूछता हूं आप लोग ऐसा ऐसा बिहेव करते हो जैसे आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है. जस्ट बिकॉज आई एम आस्किंग यू इन इंग्लिश. अगर मैं हिंदी में पूछूं कोई एक्टर है हो जिसको पसंद नहीं करते हो, तुरंत आपके दिमाग में आया कि हाँ सर का चाहिए जवाब. Right? But when I ask in English, you guys pretend that you don't hear me. Is there an actor you don't like? Is there an actor you don't like? There is no actor that you don't like. You like all the actors. Yes. किसी का देखने तो ऐसा लाइक बोरिंग, इतना बेकार एक्टर, ऐसा किसी के बारे में नहीं फीलिंग आती है. ओके. Yes, sir. Who? वरुण Who? धवन, अर्जुन वरुण. तेंदुलकर. Yeah. तो आप उसके लिए एक अच्छा सा एडजेक्टिव यूज कर लीजिए क्योंकि आपको पसंद नहीं है. वरुण धवन इज, जल्दी करिए ना अलकामा. Awful. वरुण धवन is सर वो नाटा है. ये गुड और बैड के लिए है ना, अपनी ओपिनियन बताने के लिए. वो नाटा ये बताने के लिए नहीं है ये सारे. राइट. जो हमने पढ़ा है वो क्या करने के लिए, अपनी ओपिनियन बताने के लिए. गुड और बैड हमें नहीं पसंद है. वरुण धवन इज ऑफुल. वरुण धवन इज अ टेरिबल एक्टर. वरुण धवन इज अ टेरिबल एक्टर. बेकार एक्टर एकदम. तो ये बोलने के लिए आप बोलेंगे वरुण धवन इज अ टेरिबल एक्टर. Okay, take a look here. Number 4, exercise 4. Conversation को continue करना है. Continue these conversations. How can you continue these conversations? कैसे करेंगे? Look, read the first line. The weather is lovely, isn't it? किसी ने आपके सामने बोला ये लाइन. क्या बोला? The weather is lovely, isn't it? Now imagine, why will somebody say the weather is lovely? That person thinks the weather is. So that person is saying the weather is lovely, isn't it? अब आप दोनों एक जगह पे हैं तो क्या एक ही मौसम के बारे में दो अलग अलग रो की राय अलग अलग होती है कि एक ही जैसी होती है? तो आप भी बोल सकते हैं यस. अगला लाइन. The weather is lovely. Yes, it is great. Yes, it's fabulous. इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. It is fantastic. 2. Yes, आगे भी कुछ बोल सकते हैं. The wind is so cool. The wind is so cool. 2. It's a great party, isn't it? It's a great party, Yes. isn't it? Yeah, it is. It's fabulous. आगे कुछ बोलना It is चाहेंगे? Yes, it is fabulous. Yes, it's amazing. और अगला लाइन कुछ ऐड करना चाहेंगे? The music is wonderful. The food is fantastic. Decoration is. म्यूजिक होता है, फूड होता है. ड्रिंक्स के बारे में बात कर सकते हैं. The decoration is amazing. Yes, the decoration is amazing. Well done, Prachi. Number 3. Do you like Thomas? अब बोलेंगे थॉमस कौन है? इमेजिन करना है कि थॉमस कोई आदमी है जिसको हम दोनों जानते हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं. जैसे यहाँ पर परी है, यहाँ पर शाकिब साहब हैं, ठीक है, शेख साहब हैं. तो शेख साहब के बारे में हम पूछे डू यू लाइक शेख साहब, तो आप अपनी राय रख देंगे. यस, ही इज वेरी फ्रेंडली, आई लव हिम. नो, ही इज ऑफुल, ही नेवर टॉक्स नाइसली. कुछ ऐसी राय रख सकते हैं आप. तो डू यू लाइक थॉमस? Yeah, I like Thomas. Yes, His he's nature great. is so. Yeah, he's amazing. Yes, he's fabulous. He's very friendly. His No, nature I is. don't. Yeah, I don't like him. He's awful. He never talks nicely to anyone. Number 4. How's your meal? It's good. मतलब हम आपको कुछ खाना देंगे खाने के लिए और उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं How's your meal? I have invited you to my house. आप खाना खा रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ How's your meal? कुछ It's good. It's
Fantastic. It's amazing. Taste is fabulous. The food is fabulous. And the kheer is really excellent. What do you think of your boss? Yeah, he's okay. He's off. कुछ पुश करिए अपने आप को। ये सब कॉन्वर्सेशन, ये सब क्लास ऐसा है बेटा जहां आपकी इमेजिनेशन और आपका दिमाग लगता है। ये याद करके सुनाने वाला क्लास नहीं है कि रट्टा मार के आ गए, सुना दिए और वाहवाही मिल गई, बहुत अच्छा बैठ गया। आपको यूज करना होता है अपना इमेजिनेशन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर बॉस? ऑफ कोर्स यू डोंट नो, बिकॉज़ यू गाइस आर यंग किड्स। लेकिन इमेजिन करो कि आपका कोई बॉस है, बॉस की जगह अपने टीचर को रख के देखो और कुछ बोल दो लाइन। He's He's awful. He's awful. all time He's shouting on awful. me. He never gives us leave. He never grants us leave. Whenever He we want to always leave, he says no. He always shouts at us. कुछ भी इस तरह का जो प्राची तेजी से दिमाग लगा लेती है, कैसे बोलना चाहिए वैसे बोलना चाहिए, ऐसे दिमाग लगाओ। वो कर रही है ना, आगे आगे जा रही है ना। क्यों कर पा रही है वो? उसके दिमाग में आइडियाज जल्दी आ रहे हैं कि अगर पूछा जा रहा है बॉस के बारे में तो क्या बोला जा सकता है। वो सारी बातों में से कुछ भी बोल लीजिए। डू यू लाइक माई न्यू फ्लैट? ये लाइन कब बोल रहे हैं हम लोग, ये भी सोचना होगा। कब बोल रहे हैं, ये बातचीत कब हो सकती है? डू यू लाइक माई न्यू फ्लैट? The flat देख चुके हैं। That room was really big. It's नहीं, great. कब बोला जा रहा है? पहले ये बताइए कब बोला जा रहा है, बाद में जवाब की बात करेंगे। कब बोला जाएगा ये लाइन, कब बोलेंगे? डू यू लाइक माई न्यू फ्लैट? When she was buying, I have invited you to my place, right? To show you Right. I want to show you my new flat. आप आए, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाते समय पूछ रहा हूँ, do you like my new flat? तो आपके रिएक्शंस क्या आएंगे? Yes. Polite behavior अच्छा Great. नहीं भी लगता तो अच्छा बोला, yeah, it's great, it's great. The living room is beautiful. ऐसे करके कुछ बोल देते हैं, पसंद आया नहीं आया क्या फर्क पड़ता है, बोल देते हैं। So I will open the breakout room. मैं 5-7 मिनट के लिए breakout room ओपन कर रहा हूँ। आप लोग जाएंगे and we will practice these 6 conversations with each other. और वो एक्सरसाइज 3 फिर से करना है, ऑडियो फिर से सुनना है, फिर से ऑडियो स्क्रिप्ट लिखना है, बहुत क्लीन, कोई एरर्स नहीं, ओके? और ए बी के लाइन से एक दूसरे में मैच नहीं होने चाहिए, घुसने नहीं चाहिए कि ए का लाइन बी के पास चला गया, बी का लाइन ए के पास। इसका मतलब आपको पता नहीं क्या बातचीत हो रही, कौन क्या बोल रहा है। इट्स अ बिग मिस्टेक। आई एम ओपनिंग द ब्रेकआउट रूम्स गाइस। Go ahead and practice. I'm opening the rooms, people. Go ahead. Practice. Don't sit together when you don't have the books. Silly. Sit with people who have the books at least. Change your place. Oh my goodness, you guys are silly. Hello, come and sit with him. बैकवर्ड वर्ड जो है ना, परफेक्ट सूट करता है तुम लोगों को, पता है? तुम लोग दिमाग से नहीं, बस परवरिश और माहौल से बिल्कुल बैकवर्ड हो।
बैकवर्ड और कुछ नहीं होता, जन्मजात कोई बैकवर्ड नहीं होता बेटा. Backwardness is just an attitude. You can get rid of this. आप मुझे मोबाइल दीजिए, ग्रुप में गया है, कुछ गया है. दे दीजिए पापा जी को मोबाइल.
Okay, friends, it's time to wrap up now. I hope that you guys will understand my advice and you will value it. Let me tell you again, a new language, English. There are two ways. One, you can simply translate every Hindi word into English and feel falsely, proud that you're speaking English. Another option is to learn actual English. A simple sentence. अगर आपको किसी के जूते के बारे में अच्छी बात बोलनी है तो आप बहुत सारा लाइन हिंदी बोल सकते हैं। तो जूता बड़े अच्छा लग रहा है, इतना लाइन बोला, राइट? लेकिन आपको इंग्लिश में 3-4 वर्ड्स में काम चले। बताइए क्या बोलना है आप? I love your shoes. बोलिए, योर शूज। Your shoes. Your shoes is wonderful. Your shoes is amazing. इज नहीं, आर, ये Shoes is इंपॉर्टेंट। wonderful. योर Yes, शूज sir. आर। Amazing. आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो Shoes- आपको बोल, योर शूज लुक वंडरफुल। Great. शूज लुक वंडरफुल। योर शूज लुक Wonderful. अमेजिंग। Wonderful. इस समय में अभी आर तक तो है ना, योर शूज आर अमेजिंग, आर वंडरफुल, बस हो गया। तो जब आप ये लाइन सुनते हैं तो आप ये मत सोचिए आपके जूते सुंदर हैं, ये नहीं बोला जा रहा, बस ये बोला कि उसके जूते के बारे में अच्छा बोला जा रहा है। इसकी हिंदी ऐसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने किसने कहा माई बॉस इज हॉरिबल, किसने कहा माई बॉस इज हॉरिबल, तो आप उसका मतलब ये मत निकालिए कि माई बॉस इज हॉरिबल, मेरा बॉस हॉरिबल, ऐसे मत निकालिए। इसका मतलब ऐसे निकालिए कि वो अपने बॉस को खराब बता रहा है, ये समझिए, तो आपको बेहतर इंग्लिश बोलना आएगा। अगर आपने उसको ट्रांसलेट करा तो आप नहीं कर पाएंगे, उसका पर्पस समझा तो कर पाएंगे। क्लासरूम इज बिग, तो आपको इसकी हिंदी नहीं करनी है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि इसने क्लासरूम को बड़ा बताया, हमको भी बड़ा बताना है क्लासरूम को, कैसे बोलेंगे? Classroom is really big. तो with this attitude, ट्रांसलेट करने के लिए नहीं, with this attitude you should listen to the audio file. कुछ कुछ जगहों पे अंदाजा लगाना चाहिए, अगर हम बोलते तो कैसे बोलते, ये नहीं कि इसका हिंदी क्या हुआ, ना ना ना। हम बोलते तो जैसे योर शूज, आई लव योर शूज, दे आर ग्रेट, तो आप अपने आप से ये पूछेंगे अगर हमको बोलना होता ये बात तो हम कैसे बोलते बिहार शरीफ में। चलिए, आपको कल मैं जूते पहन के आऊंगा नया वाला और आपको ये लाइन देना है आपको, ठीक है? क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? आई लव योर शूज, दे आर ग्रेट। कल मैं पहन के आऊंगा नए जूते, अच्छे जूते पहन के आऊंगा, ताकि आपको बोलने के लिए रीजन मिले सॉलिड। अभी तो आप बोल भी नहीं पाओगे, पुराना टूटा फूटा जूता है, ठीक है? बट टुमारो आई विल वेयर न्यू शूज, ओके, माय न्यू शूज। आप उस पर देना मुझे कॉम्प्लीमेंट। फिर आप अपने मन में सोचना कि हिंदी में कैसे बोलते सर, कोई बात बोलिए। कल अगर हम जूते नए पहन के आए और आपको ये लाइन बोलना है तो कैसे बोलेंगे मुझे? सर आपका जूता बहुत बढ़िया लग रहा है। दो लाइन बोला था मैंने इंग्लिश में, आई लव योर शूज, दे आर ग्रेट। क्या आपको जरूरी है 2 लाइन में बोलना, या आप 1 लाइन में भी कर सकते हैं? तो दोनों ऑप्शंस, आप 2 लाइन में चाहे 2 लाइन में, 1 लाइन में, 1 लाइन में भी कर सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास। लेकिन मैसेज कवर हो जाना चाहिए। कैसे कवर करेंगे हिंदी में? क्या बोल के कवर कर लेंगे सारी बातें? आपका जूता बढ़िया है। मस्त है एकदम। अब बोलिए मस्त कहाँ लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कहाँ? जब मैंने ग्रेट बोला था तो क्या बोला था? बोले मस्त होता है ग्रेट, मतलब क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैंने जब कहा आपके जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, मस्त है एकदम, तो मस्त है मतलब मैंने अच्छा बोला कि बुरा बोला? और जब मैंने कहा यार ग्रेट, तो अच्छा बोला कि बुरा बोला? तो आपका जो इतना बड़ा मेंटल ब्लॉकेज है ना कि आपको पढ़ा दिया ग्रेट मतलब महान, तो आप कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे। ये तोता वाला प्रॉब्लम जो है ना आपका बड़ा है। प्लीज, एडजेक्टिव्स के मामले में ये आपको रोक के रखता है, बोलने नहीं देता। इसीलिए मैंने ऐसे हिंदी करने के लिए कहा कि आपको सोचना है कि सर के जूते को मैंने अच्छा अच्छा बोला, मुझे पसंद आया, तो हमने अच्छा अच्छा बोला। अब अच्छा अच्छा बोलने के लिए हिंदी में है कि नहीं? मस्त है एकदम, जूता तो मस्त है सर आपका, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, हम भी लेंगे। आसान लगा? ऐसे ही बोलते कि नहीं? बस ऐसी ही बात बोली जा रही है इंग्लिश में। तो प्लीज इस एटीट्यूड से सुनना ऑडियो को, ओके?
I'll see you guys tomorrow. Bye bye, everybody. Take care. Bye, sir. Bye Bye, bye. Bye, sir. Bye. Bye. Yeah. Bye bye. Bye.